Introduction to the 7 churches. तो आज हम 7 कलीसिया उसका परिचय सीखेंगे I hope yesterday everybody has been blessed. और मैं आशा रखता हूँ कि कल सब आशीषित हुए हैं। Now 7 churches to start with. तो 7 कलीसियाओं के विषय में अगर शुरू करना है, We'll start with Revelation chapter 1 verse 19. We'll read. तो हम प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय 19 वचन पढ़ेंगे And verse 20. और 20 वचन भी पढ़ेंगे And chapter 1 verse 4. और पहला अध्याय और चौथा वचन। And first Revelation chapter 1 verse 19. प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय 19 वचन। Now here on the Lord's day. यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु का दिन। Yesterday where we stopped. कहाँ पर हमने पहला खत्म किया था कल? On the Lord's day, no matter what is the depression, oppression, thieves and murders around John, भले यूहन्ना जो है उसके इर्द गिर्द सब डाकू चोर सब जो है जिन्होंने गलत काम किया था उन लोगों से वो घिरा हुआ but था, it was the Lord's day. लेकिन वो प्रभु का दिन He था। said, I don't care. उसने कहा मुझे किसी चीज की On परवाह the नहीं। Lord's day, प्रभु का दिन John was lifted and the heavens opened. यूहन्ना आत्मा में उठाया गया और स्वर्ग उसके लिए And John knew और यूहन्ना जानता था these revelations are going to change the world, and it is for the world and the future things God is revealing. तो ये प्रकाशन जो है ये पूरे विश्व को बदल देगा और भविष्य की चीजों को बदल देगा। Now verse 19. अभी 19वां वचन। Now when John had an encounter with God, अभी देखो जब यूहन्ना का मुठभेड़ हुआ प्रभु के साथ now में, here the Lord Jesus Christ is speaking to John. यहाँ पे प्रभु यीशु यूहन्ना के साथ में बातें कर रहा है। Write the things which you have seen, number 1. इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है And the things which are, and the things which will take place after this. और जो बातें हो रही है और जो इसके बाद होने वाली है उन सब को लिख ले। Now 3 things are there in the scripture. ये वचन में 3 चीजें हैं Which you are going to see, जो तुम देखोगे which you have seen, और जो तुमने देखा है, the things which are, जो जैसे हैं and the things which will take place after this. और इसके बाद जो घटने वाली। Now all these things are in the book of Revelation. ये सारी बातें अभी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखी Now हुई in हैं। chapter 1 verse 20, अभी पहला अध्याय और 20वां वचन, the mystery of 7 stars which you saw in my right hand and the 7 golden lampstands. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands which you saw are the 7 churches. अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसिया के दूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसिया के। What did John see here? यहाँ पे यूहन्ना क्या देख रहा है? He's seeing the mysteries of the 7 stars. और वो 7 तारों का भेद He देख रहा है saw it on the right hand of God. और उसने प्रभु के दाहिने ओर देखा, And हाथ the में देखा 7 golden candlesticks or lampstands. और 7 सोने की दीवटें को देखा उसने। And the 7 stars are the angels of the 7 churches. और 7 तारे के 7 कलीसियाओं के दूत And the 7 lampstands which you saw are the 7 churches. और वे 7 दीवट जो तुमने देखे वो 7 कलीसियाएं, The angels of the 7 churches यानी वो 7 कलीसियाओं के दूत and the lampstands are the 7 churches. और वो जो 7 दीवटें हैं वो 7 कलीसिया के लिए है। And now in Revelation 1:4, अभी प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय 4वां now वचन, John to the 7 churches which are in Asia. योना की ओर से एशिया की 7 कलीसियाओं के नाम। Now see, he is saying, अभी वो कह रहा है, addressing, वैसे बोल रहा है, grace to you and peace from him who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne. उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं। And this is the introduction to the 7 churches. अभी ये तो परिचय है 7 कलीसियाओं। Let's pray.
आइए प्रार्थना करें। Father in heaven, we just covered these teachings by the blood of Jesus Christ. स्वर्गीय पिता, इन सारे शिक्षण को हम पर यीशु का लहू लगाते And हैं। Lord, let there be a flow of the Spirit right now. प्रभु तेरा आत्मा को बहने The दो languages flow be in the Spirit. और सब भाषाएं बह जाएं। And Lord God, I pray that every word is going to be translated. Let it be washed by the blood of Jesus. हर एक वचन जो अनुवाद आएगा वो तेरे लहू के द्वारा धोकर And आएगा। Lord, the devil doesn't want to know the book of Revelation nor read the book of Revelation, because once we get this revelation, the devil know he is already defeated. और शैतान नहीं चाहता है कि इस प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को हम समझे और इस प्रकाशित वाक्य को हम जो है उसे पढ़े, ताकि वो जो है हम उसकी सारी बातों को खुलासा हो And जाएगा। God, we defeat the works of the enemy this evening in the name of Jesus. और शाम को शत्रु के हर एक काम को हम नकारते हैं। Father, let the lampstand shows what it is. दीवट सारी बातों को प्रकट कर Let रहा the है। Spirit of the Lord speak to us. पवित्र आत्मा तो हमसे बातें कर And रहा है। this introduction will be an everlasting revelation in the hearts of your people. और ये परिचय जो है वो सबके हृदय में अनंत काल के लिए बस जाएगा। God, yesterday you spoke what is the book of Revelation. कल प्रभु तूने हमें बताया कि प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा Today है। you are taking the next step, oh Lord. You are introducing us what is the seven churches. प्रभु एक और कदम तो हमें आगे ले जा रहा है, तो हमें परिचय कराया वो 7 कलीसियाओं के साथ। And Lord, we rebuke the devil and the atmosphere, and everything will be clear by the blood of Jesus Christ. हम शैतान को डांटते और सारे वातावरण को डांटते और हम कोशिश करते कि सब कुछ साफ और क्लियर होगा। Let there be a flow of the Spirit. आत्मा को बहने दो। Amen and amen. आमेन और The आमेन। devil doesn't want you to read the book of Revelation, तो शैतान नहीं चाहता कि तुम प्रकाशित वाक्य because को पढ़ो। everything that is written in this, it will defeat the devil. क्योंकि जो भी बातें इसमें लिखी है उसके द्वारा तुम शैतान को हरा सकते You are an overcomer, you are victorious, you are a champion when you know the book of Revelation. तुम विजय हो और तुम एक चैंपियन हो जब तुम इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जानोगे। That's what, what are we going to study in the days to come? तो आने वाले दिनों में हम क्या सीखने We वाले are हैं? going to study 7 churches according to Revelation chapter 1, 2 and 3. तो हम 7 कलीसियाओं के विषय में सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 1, 2, 3 के अनुसार। We were going to study next after the study of the 7 churches. We are going to study on 7 seals according to Revelation chapter 1 to 10 and 4 to 7. तो ये 7 कलीसियाओं का सीखने के बाद जो है हम जो है वो 7 मुहरों के बारे में सीखेंगे जो प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय और 10वां अध्याय में है। And 4th and 7th chapter. और चौथा 4 to अध्याय 7. चौथा से 7वें अध्याय में उसके वर्णन किया And we गया are going to learn about 7 trumpets after the seal. Revelation from 8, 9 and 10th chapter. तो 7 मुहरों का शिक्षण पाने के बाद करने के बाद हम जो है 7 तुरियों के बारे में सीखेंगे जो प्रकाशित वाक्य का 8वें अध्याय से 10वें अध्याय में वर्णन किया Then we है। will learn about 3.5 years tribulation according to Revelation chapter 11 to 18 chapters. फिर हम 3.5 साल का जो क्लेश होगा वो प्रकाशित वाक्य का 11वां अध्याय से 18वां अध्याय में उसके बारे And में when we वर्णन come किया to the है। 19th chapter, we will experience the coming of our Lord Jesus और Christ. जब हम 19वें अध्याय में आएंगे यीशु मसीह के आगमन के बारे में हम And जानेंगे। we will study the 1000 year of reign in Revelation chapter 20. फिर 1000 के लिए उसकी प्रभुता वो हम प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में हम And पढ़ेंगे। we will study in the last the new heavens and the new earth, the eternity in Revelation chapter 21 and 22. That is the last 2 chapters. हम नए स्वर्ग और नए पृथ्वी को के बारे में जानेंगे प्रकाशित वाक्य का 21 अध्याय और 22 अध्याय में जो अनंत काल के लिए होगा। Amen. Now we will go to the introduction to the 7 churches. अभी हम 7 कलीसिया के जो इंट्रोडक्शन है परिचय में जाएंगे। See, when we read the chapter 1 verse 19, जब हम प्रकाशित वाक्य के पहला अध्याय और 19 वचन पढ़ते we हैं find threefold division of the book of Revelation. तो हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का 3 भाग में है। It gives us threefold division of the entire book of Revelation. यानी पूरा जो प्रकाशित वाक्य का पुस्तक है उसका हमें 3 भागों में हम समझते हैं। Just in one scripture, केवल एक वचन में it gives the entire revelation of the book of Revelation from chapter 1 to 22. यानी
प्रकाशित वाक्य का पूरा जो अध्याय है, जितने भी अध्याय है, वो केवल वो एक वचन में हम पूरा अध्याय जान जाते You हैं। know, that is in chapter 1, verse 19. और वो प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय 19 वचन में है। Write these things which you have seen, and the things which are, and the things which will take place after this. इसीलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो इसके बाद होने वाली है, इन सब को लिख लो। You know, when he लिख लो। says that, जब ऐसा कहता है, that means it gives us the threefold division of the entire book of Revelation from chapter 1 beginning to the end of the chapter 22. जब ये हम पढ़ते हैं, हम जान जाते हैं कि हम पूरे प्रकाशित वाक्य का पुस्तक जो है समझ जाते हैं, जो प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय से 22 अध्याय में सब वर्णन किया हुआ है। In chapter 1, पहला अध्याय, John has already seen what John has already seen. पहला अध्याय वो है जो यूहन्ना ने सब देखा हुआ है। Amen. In chapter 2 and 3, और दूसरा और तीसरा अध्याय में it talks about the situation in John's time. यानी वो हालातों को बता रहा है जो यूहन्ना के समय में हुआ What was the situation of the sevenfold churches in Apostle John's time? यानी प्रेरित और यूहन्ना के समय में वो उन कलीसियाओं की हालात कैसी थी। You know, churches are in Asia Minor. तो कलीसिया जो एशिया माइनर में थी, Today it is known as present day Turkey. आज के दिन में उसे हम टर्की कहते हैं। It is a location of influence and for culture and the cities. वो एक ऐसा शहर है जो बड़ा प्रभावशाली जगह है और वो अपने परंपरा के लिए माना जाता है। It is like an Asian history of culture. यानी वो बहुत ही बड़ा ऐसा एक उनका जो एक बड़ा संस्कृति है वहाँ It पर। is now situated in Europe. अभी वो यूरोप में है। These 7 churches ये देखो, ये 7 कलीसियां हैं are the ones which John is talking about the situation. वो सारी कलीसियां को परिस्थिति के बारे में बताता है। You know, he's talking about the situation in the 7 churches. यानी वो 7 कलीसियां की हालात कैसी थी वो बता रहा है। Number 3, तीसरी बात, in chapter 4 to 22, और प्रकाशित वाक्य का चौथा अध्याय 22वां वचन, 4th chapter till 22, सॉरी, और चौथे अध्याय से 22 अध्याय तक the events foretold of the future that is going to happen. यानी जो भविष्य में होने वाला है उनके बारे में वर्णन किया हुआ है। That means उसका मतलब है chapter 1, यानी पहला अध्याय John has already seen. जो यूहन्ना ने पहले से देखा है, Chapter 2 and 3, और दूसरा और तीसरा is talking about the sevenfold churches which is situated in Asia Minor. The presently it is called Turkey, which is situated now in Europe. और वो 7 कलीसियाओं के बारे में बताता है जो एशिया माइनर जो लिखा हुआ है, लेकिन वो आज की तारीख में उसे टर्की कहते हैं, यानी यूरोप की तरफ है। उन सिटी उनकी दिशा बताता And है। he's talking about the 7 condition of the church. और वो 7 कलीसियाओं के 7 हालातें को बता रहा है। Morning, somebody I was talking, they said, Pastor, please go slow. That's what I'm repeating so that you can register it. आज सुबह को किसी से बातें कर रहा था, उन्होंने कहा कि पास्टर कृपया करके थोड़ा स्लो सिखाएं, इसलिए मैं बार-बार उसे दोहराना हूं। Okay, from chapter 4 till 22, तो the last chapter, तो प्रकाशित वाक्य का चौथा अध्याय से 22 अध्याय तक, you know, the events foretold of the future that is going to happen. तो वहाँ पे भविष्य में होने वाले घटनाओं के विषय में वहाँ पे बताया हुआ So है। if you read Revelation chapter 1 verse 5, अगर तुम प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय 5वां वचन पढ़ोगे, from Jesus Christ, यीशु मसीह की ओर से, you know, the faithful witness, जो विश्वास योग्य साक्षी है the firstborn from the dead, और मरे हुओं में से जी उठने वाले में पहलौठा, and the ruler over the kings of the earth. और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। This is the 3 revelation of Jesus Christ. तो ये यीशु के 3 प्रकाश Or you हैं। can say like this, there are 3 titles for Jesus Christ, या or तुम ऐसे- 3 titles of Jesus Christ. तो तुम ऐसे भी कह सकते हो कि यीशु मसीह के 3 शीर्षक। What is the 3 titles of Jesus तो Christ? यीशु के 3 शीर्षक क्या है? He is a faithful witness,
वो विश्वास योग्य साक्षी He is the firstborn from the dead और मरों में से जी उठने वालों में से and the पहलोटा ruler over the kings of the earth. और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। Amen. So when you think about, he is a faithful witness, number one. और जब तुम इस बात को समझते हो कि वो विश्वास योग्य साक्षी है, Imagine Jesus Christ is our faithful witness because when we go to the Father, he is going to witness on behalf of us. इस बात की कल्पना करो, यीशु मसीह वो विश्वास योग्य साक्षी है, क्योंकि जब हम पिता के पास जाते हैं तो वो हमारे बारे में विश्वास योग्यता से साक्षी देता That है। is why he is called faithful witness. इसीलिए हम उसे कहते हैं कि वो विश्वास योग्य If साक्षी you है। confess me before the men, I will confess you before the Father. यदि Jesus तुम, said. यीशु ने कहा कि यदि तुम मेरे बारे में लोगों के सामने निकाल करते तो तुम्हारा नाम मैं पिता के सामने Now लूंगा। number two, he is the first begotten from the dead. तो दूसरी बात है वो मरों में से पहलोटा, That means जी उठने वाले में से पहलोटा, that means Jesus Christ rose from the dead. यानी यीशु मसीह मरों में से जी उठा। He came out of the first fruit so that all those who die in Christ will rise up one day. तो वो सब में से वो पहलोटा इसलिए क्योंकि जो भी मसीह में मरेंगे वो एक दिन जी उठेंगे। Wow, think about it. सोचो इसके बारे He is में। the first begotten of the dead. तो वो मरों में से जी उठने वाले में से पहलोटा, And those who die in Christ और जो मसीह में मरते हैं will rise up one day. That is a confidence that we have, hope we have. और वो एक दिन जी उठेंगे, वही तो आशा है हमें। The title number 3 for Jesus. यीशु के लिए तीसरा शीर्ष, He is the ruler over the kings of the earth. तो वो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। That means he is going to come one day. उसका मतलब है वो एक दिन आएगा। He is going to rule the earth. As I told you, he comes and his feet will touch the Mount Zion. यानी वो एक Yes, दिन sir. आएगा और फिर से जो है वो राज्य करेगा, यानी उसका जो पैर है वो पर्वत सिय्योन पर आएगा And it will split into two. और फिर वो पर्वत दो भाग होंगे And it will be, that place will be called Armageddon. और वो जगह का नाम होगा अर्मगेदोन। And the nations will rise against him. और सारे जाति के लोग उसके विरुद्ध आएंगे, But the entire nations of the world will rise against him. सारे पूरे विश्व के जितने भी देश है, राष्ट्र है, वो उसके विरुद्ध लड़ाई करने But he आएंगे। will speak one word, the entire world, all those nations will disappear. यानी उसके एक शब्द के द्वारा वो सारे राष्ट्र जो है गायब हो And जाएंगे God will establish his reign on the earth. और प्रभु अपनी प्रभुता पृथ्वी पर करेगा। So when you read the book of Revelation, और जब तुम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हो, you know, we wonder why the number 7, only 7 churches, why it is not 8 or 9. तो हम ये सोचते हैं हमेशा कि ये 7 क्रमांक क्यों दिया है, 8 या 9, दूसरा कोई क्रमांक क्यों नहीं दिया You है? know why it is only 7 churches? तो केवल 7 कलीसियां ऐसी क्यों लिखी You know है? why it is only 7, it's not 8 or 9? जानते हो ये 7 क्यों लिखा हुआ है, 8 9 नहीं है? There are 4 reasons 4 कारण हैं why we have to read these 7 churches. तो हमें ये 7 कलीसिया क्यों पढ़नी है, Why जाननी है। the revelation is for 7 churches only. तो ये प्रकाशन जो है केवल 7 कलीसियाओं के लिए क्यों है? Number 1, पहला, each church was comprised of various congregations. हर एक कलीसिया में अलग अलग तरीके के लोग थे मंडली में। You know, when you read about all these churches, जब तुम ये सारी कलीसियाओं के बारे में पढ़ते you हो, will find these 7 churches comprised with different congregations. तुम्हें पता चलेगा कि ये 7 जो कलीसिया थी, हर एक कलीसिया के जो लोग थे, मंडली थी, वो अलग अलग तरीके के लोग Keep in थे। your mind, we will study when we are studying the each churches, you will understand what kind of तो ये people. बात ध्यान में रखें, क्योंकि जब हम एक एक कलीसिया को सीखेंगे तब आप समझ जाओगे हम जो कह रहे हैं। Means these 7 churches उसका मतलब है कि ये 7 कलीसिया have है, meaning for us today. तो आज हमारे लिए उसके लिए कोई अर्थ रखता You है। know, that's why it is called 7 churches. इसीलिए कहते हैं कि 7 कलीसिया। God spoke to 7 churches, प्रभु ने 7 कलीसिया से बातें and की, there is a meaning for us also to learn. तो हमारे लिए भी उसमें कुछ अर्थ है सीखने के। And number 2, दूसरा, why 7 churches? क्यों 7 कलीसिया? These churches ये कलीसिया है, represented the totality of the churches of that day.
यानी वो जो 7 कलीसियाएं थी, आज की जितनी भी कलीसियाएं वो उन टाइम पे, कलीसिया वो की टाइम पे। वो कलीसिया को दर्शाता है। You know, those days so many churches was there. उन दिनों में बहुत सारी कलीसियाएं थे। But the totality of those churches, उन कलीसिया में जितने भी कलीसियाएं थे, and these are the 7 replica to those churches. यानी उन दिनों में जितनी सारी कलीसियाएं थे, ये 7 कलीसिया उन बाकी के सारी कलीसियाओं को जो है दर्शाती है। Meaning there were hundreds of churches. तो उसका मतलब है हजारों में 100 से ज्यादा कलीसियाएं थी। Those days there was church was multiplying like anything. उन दिनों में कलीसिया जो है बहुत बढ़ोतरी हो रही थी। But these 7 churches लेकिन ये जो 7 कलीसियाएं represented all the churches which existed in those days. यानी ये कलीसिया उन बाकी के जितने भी कलीसियाएं थे, उन कलीसियों का जो है एक नमूना जैसा था या वो एक रिप्रेजेंटेटिव And था। not only that, वही नहीं, these churches represented all the churches throughout this age as well. वही नहीं, लेकिन आज जितने भी कलीसियाएं हैं, वो जो 7 कलीसियाएं हैं थी, वो कलीसियाएं उसको प्रदर्शित करती हैं। You know, meaning उसका मतलब है this is the climax. ये वो क्लाइमैक्स है। These 7 churches represents today in the world. यानी ये जो 7 कलीसियां हैं, आज जितने भी कलीसिया हैं, उनमें से वो कलीसियाओं को दर्शाती है। We have seen lakhs and lakhs and lakhs of churches in the world. तो हमने जो कलीसिया देखी है, लाखों 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 कलीसिया है आजकल। But wherever you go तो फिर वो जहां पर भी तुम जाओगे, and take the 7 churches अगर उन 7 कलीसियाओं को तुम लेते and हो, you preach in a church, अगर तुम कलीसिया में प्रचार करते it हो, is a meaning इसका मतलब है or a relevance to existing churches in the world today. यानी वो आज की जो कलीसिया है उनको जो है प्रतिनिधि करती है। Hallelujah. It's very, very simple. तो बहुत साधारण बात है। Why only 7 churches? केवल 7 कलीसियाएं क्यों? Because here something is there. यहाँ पे कुछ है। You know, the 7 Spirit represents the perfection and the ministry of the Holy Spirit. तो ये 7 जो आत्माएं हैं, यानी वो जो है वो परिपूर्णता और सेवकाई को, पवित्र आत्मा की सेवकाई को दर्शाती है, जो कलीसिया में भी। It talks about in Revelation chapter 4 verse 5. ये सारी बातें प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय 5वें वचन में It है, talks about in chapter 5 verse 6. और प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय 6वां वचन, And we learn in Isaiah chapter 11, 2 and 3. और इसके बारे में हम यशायाह 11 अध्याय 2 और 3 वचन में देखते हैं। It represents the ministry of the Holy Spirit. यानी वो पवित्र आत्मा को जो है उसकी प्रतिनिधि When करती you है। read about the 7 churches, जब तुम इस 7 कलीसिया के बारे में पढ़ते you हो, will see how the power of the Holy Spirit is at work. तो तुम देखते हो कि पवित्र आत्मा का काम कितना सामर्थ्य रूप से हो रहा है। Sometimes churches may be in bad conditions, कभी कभी ऐसा होता है कि कलीसिया के बहुत बुरी हालतें होती but हैं, the beautiful thing is लेकिन सबसे सुंदर बात ये the है, Holy Spirit continues to work in the midst of the church, तो पवित्र आत्मा जो है कलीसिया के मध्य में कार्य because करता that है। is the only advantage you and I or we have for a renewal through the church of Jesus Christ. तो वही तो फायदेमंद हमारे फायदा है, हमें, तुम्हें और मुझे, वो पवित्र आत्मा की सहायता से ये सब बातें होती Now हैं। think about, each church was comprised of various congregation. विचार करो, हर एक कलीसिया में अलग अलग तरीके की मंडली थी। These churches represented the totality of the churches of that day. यानी ये जो 7 कलीसिया थी, वो जैसे बाकी की जितनी भी उन दिनों में जो कलीसिया थी These are उसकी the main प्रतिनिधि थी। And these churches represent all the churches throughout this age. तो वो 7 कलीसिया आज जितनी भी कलीसिया है, उस कलीसियाओं का भी प्रतिनिधि है। And the 7 Spirit और वो 7 आत्माएं हैं, represents the perfection and the ministry of the Holy Spirit to the church. तो फिर वो जो है पवित्र आत्मा के कार्य को और वो परिपूर्णता को जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है उसे दर्शाती है। Now let me tell you, अभी मैं तुम्हें पूछना चाहता when हूँ, a tragedy strikes to us, a disaster or a problem or a situation strike to us, the only hope we have is the word of God. तो हमारे लिए अगर कोई ऐसी कोई
शोकपूर्ण घटना घटती है या कुछ बुरी बात होती है, तो हमारे लिए एक ही आशा है, वो है प्रभु का वचन। When the church goes through a problem, जब कलीसिया कोई समस्या से गुजरता when the है, church goes through persecution, जब कलीसिया कोई क्लेश से when गुजरता है, people attack over the church, जब लोग कलीसिया के ऊपर हमला करते हैं, when believers are fainting in their faith, जब विश्वासी लोग अपने विश्वास में जो है बहुत when they are डर- living in fear, जब वो डर से जीते हैं, the only hope in the world, पूरे विश्व में एक ही आशा है, we have to go back to the Word of God. हमें फिर से प्रभु के वचन में जाना है। So when we go to the Word of God, और जब हम प्रभु के वचन में जाते you हैं, know what happens? जानते हो क्या होता Only है? the Word of God is the hope for us. तो हमारे लिए केवल प्रभु का वचन है वो जो हमें आशा देती If you है। look into the history of the Bible, अगर बाइबल के इतिहास में तुम देखोगे, how many robbers looked to the thief on the cross to find hope. कितने चोरों ने क्रूस की ओर देखा अपने जीवन में आशा पाने के Think लिए। about the robber who was hanging on the cross. और उस चोर के बारे में सोचो जो अपराधी था उस क्रूस पर लटका Jesus हुआ था। forgave that sin. यीशु ने उसके पापों को क्षमा Today किया। you will be with me in paradise. उसने कहा आज तो मेरे साथ अधोलोक Think about the जाएगा। whole robbers, the thieves, they see that robber on the cross. और विचार करो उस आज जितने भी चोर लोग हैं या अपराधी लोग हैं उस क्रूस पर लटका हुआ उस चोर को भी देखते हैं। Oh, they got the hope. Oh, there is a hope for me. वो क्रूस को जब देखते कहते हाँ मेरे लिए आशा Where do है। you get the hope? तो तुम्हें वो आशा कहाँ से प्राप्त होती Come है? back to the Word of God. प्रभु के पास वापस आ You जाओ। know how many adulterers looked to the King David to find hope. कितने व्यभिचारी है जो जिन्होंने जो है राजा दाऊद की ओर देखा अपनी आशा पाने के। He went and spoiled Bathsheba. उसने जाकर बेतशेबा का जीवन You खराब know, किया। he killed her husband. उसके पति का उसने हत्या किया But he got married to her. और उसके साथ जाकर विवाह Child किया। was born बच्चा जन्मा, and the child died. बच्चा मर गया। He fasted. उसके बाद उसने He उपवास prayed. किया और प्रार्थना He की। repented. Create in me a clean heart, O God. Renew a right spirit within me. पश्चाताप करके कहा प्रभु मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय तो निर्माण कर। You know, think मेरे about आत्मा how को many adulterers सोचो कितने ऐसे व्यभिचारी finding the hope. उन्होंने आशा पाई। But when they see David of the Bible, लेकिन जब बाइबल का डेविड को दाऊद को देखते हैं you know, David was a man after God's own heart. तो दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के हृदय से बहुत निकट था। So people will get the hope when they see David. ताकि लोगों के अंदर आशा आ जाती जब वो दाऊद को How देखते हैं। many murderers have looked to the apostle Paul to find hope? कितने सारे जो हत्यारे हैं उन्होंने प्रेरित पौलुस की ओर देखा आशा पाने के Because लिए। Saul, before he became Paul, he was a murderer in the Bible. क्योंकि सौल जो है पौल बनने से पहले वो एक हत्यारा था। But today there are so many people who murder Christians and destroy the churches. They don't have hope. But when they see Apostle Paul, they have hope in the Word of आज God. भी बहुत सारे लोग हैं जो मसीहों को जो है सताते क्लेश करते हैं और उनके अंदर कोई आशा नहीं, लेकिन जब वो उस प्रेरित पौलुस की ओर देखते हैं तो उनके जीवन में आशा आती है। How many prostitutes looked for hope to the woman who wiped Jesus' feet with her tears and hair? तो कितने स्त्रियों ने जो है वो उस व्यभिचारी स्त्री के ओर देखा जिसने यीशु मसीह को जो है अपने आंसुओं से उसका चरण धोया And with her hair. और अपने बालों से। You know, many adulterous women, they may be seeking, where is the hope for me? तो बहुत सारे व्यभिचारी ढूंढ रहे होंगे कि मेरे When लिए the कहाँ है? prostitutes are calling, where is the hope for me? कितने वेश्या लोग कहते होंगे कि मेरे लिए कहाँ आशा प्राप्त होगी। The hope is only in the Word of God. आशा केवल प्रभु के वचन में है। Only the hope comes through the Word of God. आशा केवल प्रभु के वचन से आता है। Think about how many demonized people, you know, in Gadarene, that man was demonized. He didn't have the hope, but Jesus delivered him. But after that, he was sitting at the feet of Jesus Christ. वो गदरीन में जो व्यक्ति था, सोचो उसके जीवन में कोई भी आशा नहीं था, लेकिन यीशु ने उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाला। उसके बाद वो जाके यीशु के चरणों में बैठ गया। Today, how many demonized people looking of that deliverance in the Word of God? Oh, they will have a hope. Jesus can deliver me. देखो आज कितने दुष्टात्मग्रस्त व्यक्ति लोग हैं जो प्रभु के वचन में देखकर कहेंगे कि हाँ वो जो है मेरे जीवन में भी मेरी एक आशा है। You see in the Bible,
तुम बाइबल में देखते हो every situation, हर एक स्थिति में we are able to go back to the Bible and find the answer. तो हम बाइबल में जाके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। Hallelujah. Going back to the Bible, we get an answer for all our questions. तो बाइबल में वापस अगर यदि हम जाएंगे तो हमारे सारे सवालों का जो है जवाब हम पा सकते Think हैं। about when the tragedy struck the church. विचार करो जब कलीसिया में कोई भी Now the church is shut down. अभी सोचो कि कोई भी अगर ट्रेजेडी है, अभी देखो कलीसिया बंद The है। whole world, the church, mega churches, small churches, big churches, all the churches have been shut down. पूरे विश्व में बड़े कलीसिया, छोटे कलीसिया, मेगा चर्च, छोटे जो भी है, पूरे विश्व में सारे कलीसिया जो है बंद What does the church do now? अभी कलीसिया क्या करेगी? Church goes to the Bible. तो कलीसिया बाइबल के पास वापस So we have to go to the 7 churches in the Bible to find what answer is there. तो हमें जो है वो जो है 7 कलीसिया जो जिसका वर्णन बाइबल में किया हुआ है, उन कलीसियाओं में वापस जाना है देखने के लिए हमारा उत्तर If you प्राप्त look करेंगे। into the Bible अगर तुम बाइबल में देखोगे to find the answer, उत्तर प्राप्त करने के लिए we find, हमें मिलता है the Redeemer lives and the Redeemer delivers us. और वो छुटकारा देने वाला ईश्वर जीवित है और वो हमें छुटकारा देता है। Is there any deliverance for the church? क्या कलीसिया के लिए कोई भी छुटकारा Is there है? any hope for the church today? आज कलीसिया के लिए कोई आशा है? Is there any hope for the pastor today? पासवानों के लिए कोई आशा है? Is there any hope for the priest today? जो याजक लोग हैं उनके लिए कोई आशा Is there है? any hope for the worship leader today? आज आराधकों के लिए क्या कोई आशा Is है? there any hope for the leader today? या लीडर अगुवाओं के लिए क्या कोई आशा है? Can God bless the church like previous days? क्या पहले जैसे प्रभु कलीसिया को आशीषित कर When सकते we हैं? ask all these questions, जब ये सारे सवालों को हम पूछते we हैं can straight away go into the book of Revelation और तो हम सीधा प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में जा सकते and हैं find out और पा सकते हैं what hope God has given to us. तो हमारे लिए प्रभु ने कौन सी आशा रखी हुई है। You as a person तुम एक व्यक्ति के रूप में, means ecclesia, एक इक्लीसिया होने के रूप में, meaning you are the person called out once by God. उसका मतलब है कि परमेश्वर की ओर से तुम बुलाए हुए व्यक्ति हो, The, बाहर बुलाए the हुए। once you are from ecclesia एक बार जब तुम इक्लीसिया से हो, means the called out one जो बाहर बुलाए गए for हो the church of Jesus Christ. यीशु की कलीसिया के लिए, When we go downwards in our spiritual life, जब हमारे आत्मिक जीवन में हम नीचे जाते हैं, we are backslidden, think about it. सोचो कि अगर हम पीछे हटे हैं We go back to the word of God तो हम प्रभु के वचन में वापस जाते and we हैं, look into the 7 churches फिर हम 7 कलीसिया को देखते हैं, and we will revive and renew our minds. तो फिर हम जाकर हमारे मन को फिर से ताजा बना सकते हैं। When you look into the 7 churches, जानते जब तुम 7 कलीसिया में देखते हो, I guarantee you, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, when you zoom into every single church, जब तुम जूम करके एक कलीसिया को देखोगे, by the time I finish the book of Revelation, जब तक मैं प्रकाशित वाक्य का शिक्षण पूरा you will करूंगा, have the revelation of Jesus and you will be a fire for God. तुम्हारे अंदर यीशु मसीह के लिए ऐसा प्रकाशन आएगा और प्रभु के लिए तुम पूरे अग्नि से भरोगे। When you look into the 7 churches, जानते हो जब तुम्हें 7 कलीसियाओं को तुम you will come back with a new zeal, तुम्हारे अंदर एक नया जोश से with तुम आ new जाओगे। enthusiasm, तो एक नया जोश तुम्हारे अंदर उतर आएगा। turning back to God and saying, God, I have decided only one thing, that is to serve you. और तुम प्रभु की ओर मुड़ोगे और एक ही बात कहोगे कि प्रभु मैंने निर्णय लिया कि प्रभु मैं केवल तेरी सेवा And to करूंगा, live only for you. तेरे लिए जीऊंगा। That is what the effect that is going to take place in this week after you learn the 7 churches. तो ये उसका प्रभाव होगा ये 7 कलीसियाओं का शिक्षण प्राप्त करने के बाद तुम्हारे अंदर। When you read the book of Revelation, जानते जब तुम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक पढ़ते हो, chapter 2 and 3, दूसरा और तीसरा अध्याय, it reveals
Jesus gives message to the 7 churches here. तो यहाँ पर वो एक बात प्रकट होता है कि यीशु मसीह वो 7 कलीसियाओं को कुछ संदेश दे रहा है। Here we see Smyrna and Philadelphia. तो यहाँ पर हम स्मरणा और फिलाडेल्फिया को देखते हैं। In chapter 2, 8 and 3, 7. और दूसरा अध्याय और 8वें वचन में और तीसरा अध्याय 7वें वचन में। These 2 churches commended to their work. तो ये 2 कलीसिया की जो स्मरणा और फिलाडेल्फिया उनके कामों के लिए उन्हें सराहा You know, गया। these are the only 2 churches was not criticized. देखो ये केवल ये 2 कलीसिया है उनकी निंदा नहीं की You know, गई। these 2 churches ये जो 2 कलीसिया were है never been criticized. उनकी निंदा नहीं की। How wonderful it is to be commended by Jesus Christ. और कितनी सुंदर बात है कि यीशु की ओर से जो है सराहना और ये He says to the church in Smyrna and Philadelphia, वो स्मरणा और फिलाडेल्फिया की कलीसिया से प्रभु कहता I है have nothing against you. तेरे विरुद्ध मुझे कुछ नहीं There is कहना no criticism in that church. है। उस कलीसिया की निंदा नहीं की गई In है। Revelation chapter 3:14, और प्रकाशित वाक्य 3:7 में you know, we see हम देखते हैं Laodicea church. तो हम जो है लवोदेसिया की कलीसिया देखते हैं। Laodicea only criticism. लवोदेसिया की कलीसिया में केवल जो है निंदा हुई है। This is only introduction. ये केवल जो है इंट्रोडक्शन कर And रहे हैं। then we will take and zoom it to the study each by each. तो एक एक करके जो है हम स्टडी करेंगे। So you see in this church, तो इस कलीसिया में तुम देखते हो there was only criticism in this church. केवल निंदा की गई है उस कलीसिया में। When you see other 4 churches, लेकिन बाकी के 4 कलीसिया जब तुम देखते हो mainly Ephesus, खास करके एफिसस, all these 4 churches, ये सारे 4 कलीसिया they were called to repent, उन्हें पश्चाताप करने के लिए बुलाया गया and God threatened them with the terrible things they were commanded. और प्रभु ने उन्हें जो है Terrible things, you know, God's command, you know, प्रभु ने उन्हें judgment. आज्ञा, प्रभु ने बहुत बड़ी भारी आज्ञा दी उन्हें। You know, दंड की। it was very dangerous for them. तो उनके लिए बहुत खतरनाक बात You know, they were totally criticized by God. यानी प्रभु ने पूरी तरह से उनकी निंदा की। And God says to these churches, और प्रभु इस कलीसिया से कहता if है you don't repent, यदि तुम मन नहीं I फिराओगे will come and this is what I'm going to do for you. तो मैं आऊंगा और ये तेरे लिए करूंगा। Now imagine विचार करो what a strong warning कितना स्ट्रॉन्ग यानी वार्निंग है, for us चेतावनी। as a church. हम एक कलीसिया होने के रूप God में says to the church, प्रभु कहता है कलीसिया से if you don't repent, यदि तू मन नहीं this फिराएगा is what I'm going to do for you. तो ये बात मैं तेरे लिए करूंगा। So to Ephesus church, एफिसियों की कलीसिया के chapter लिए 2 verse 5, दूसरा अध्याय 5वां वचन, I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दिवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। God says to this church, प्रभु इस कलीसिया से कहता है if you don't repent, यदि तू मन नहीं He फिराएगा will remove the lampstand. तो वो दिवट को निकाल देगा, If God हटा देगा। removes the lampstand, अगर प्रभु ने उस दिवट को हटा दिया it's all gone. तो सब खत्म, It's all gone. सब खत्म। What does it mean? उसका मतलब क्या You है? know, it is a lampstand has 7 lights, तो ये दिवट के लिए दिवट में जो है 7 दिए हैं, 3 on the left, 3 on the right, 3 बाईनी और है 3 दाहिनी ओर and है, 1 is in the center. और एक बीच में है। It is Jesus who died on the cross. वो यीशु क्रूस पर मरे। And if you remember, the light disappeared. और अगर आपको याद होगा तो वो बिजली जो है निकल गई थी, बिजली And पूरी Jesus बुझ गई थी। became the permanent light of the world. तो यीशु मसीह हमेशा के लिए जगत की ज्योति Now बन गए। think about it. सोचो इसके बारे में। God is removing that permanent light out of the church. सोचो इसके बारे में। प्रभु वो जो परमानेंट लाइट है वो प्रकाश को ही निकाल रहे हैं उस कलीसिया And से। that is what he's saying. और वही तो वो कह रहा है, I will remove the lampstand, everything will be removed. यानी वो कहता है कि मैं दिवट को ही मिटा दूंगा, यानी वो सब कुछ मिटा देगा। God says to Ephesus church. तो मैं प्रभु कह रहा है एफिसियों की कलीसिया We से need to be very careful. हमें बहुत सावधान If होना है। Jesus is only not in the church, अगर यीशु कलीसिया में नहीं है what is the use of living in the church? तो वो कलीसिया में रह के क्या फायदा? You know, the light is gone. यानी वो जो
ज्योति है वो ही निकल गई है। And God is speaking, threatening them, if you don't repent. और प्रभु वहां पे उन्हें चेतावनी देकर कह रहा है कि यदि तू मन नहीं न फिराएगा, You know, God is going to remove the lampstand, means Jesus is out of the church. तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा, यानी यीशु वो कलीसिया Now नहीं we रहेगा। see another church here, यहाँ पर एक और कलीसिया हम देखते हैं, to the Pergamum, Revelation 2:16. प्रकाशित वाक्य 2:16, And यानी here God, पेरगमुम की कलीसिया। here God is saying, यहाँ पे प्रभु ऐसा कहता I है, will make a war against them with the sword of my mouth. और प्रभु कहता है कि मेरे मुंह से की तलवार से जो मैं उनके विरुद्ध तलवार की ओर से मैं उनके साथ लड़ूंगा। You know, it is very difficult to fight against God. प्रभु के साथ लड़ना बहुत मुश्किल बात है। Just imagine, कल्पना करो, if you go against and fight against God, it is going to be a terrible thing for you. अगर तुम प्रभु के विरुद्ध जाओगे और प्रभु के विरुद्ध लड़ाई करोगे तो बहुत खतरनाक बात What है। God is saying here प्रभु यहाँ पे क्या कह to रहा the है? Pergamum church, परगमम की कलीसिया I से will make war against them with the word of my mouth. मैं आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। Now these are all introductions. ये सारी परिचय, You all keep these things in the mind. ये सारी बातों को अभी When ध्यान we में रखें। focus on each church, जब हम एक एक कलीसिया का संक्षेप में then you will सीखेंगे, understand why God was angry. तो फिर तुम समझोगे कि प्रभु क्यों इतना नाराज हो गए थे। You know, now we see another church here in Revelation 2:22. यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय 22वां वचन, You know, it is Thyatira church. ये है तुआतीरा चर्च। You know, Thyatira church, तुआतीरा की कलीसिया, God is saying, प्रभु कहता है, I will cast her into a sick bed. तो प्रभु कहता है कि मैं उसे बीमारी के खट्टे पे And लिटाऊंगा those who commit adultery और जो उसके साथ में व्यभिचार करते with हैं her into great tribulation, और यदि उसके काम तो उन बड़े क्लेश में डालूंगा, unless they repent of these deeds, और जब तक their deeds. और उसके सब कामों से वो जब तक वो मन न फिराए। God is saying straight away, सीधा प्रभु कह रहा I है, will put you on the sick bed. मैं तुझे रोग शैया पर डालता हूँ। When God judges, और प्रभु जब न्याय करता है, He does not leave us like that. वो हमें ऐसे ही नहीं छोड़ता He है। commands, but He is so interested in the church because He is the bridegroom. वो आज्ञा इसलिए देता है क्योंकि वो कलीसिया में इतना दिलचस्पी रख रहा है, क्योंकि वो खुद दूल्हा है He कलीसिया का। wants to prepare His people without any spot and blameless. वो चाहता है कि उसके लोग तैयार हो जाए बिना कोई उसके ऊपर कोई भी दोष नहीं रहना Like the lamb चाहिए, of- निष्कलंक Like रहे। the Lamb of God which was slain on the cross of Calvary, which was having no spot, no blameless. वो प्रभु का जो मेमना था, जो क्रूस के कलवरी के क्रूस पर जो है वध किया हुआ था, जिसके अंदर कोई भी जो है खोट नहीं था। You know, He wants the church to come back to His fold and worship and live for Him. तो वो चाहते कि कलीसिया उसके पास वापस आए और उसके लिए जिए। You know, the bridegroom is coming. दूल्हा वापस आ We रहा है, need to stay as spotless and blameless. तो हमें जो है निष्कलंक रहना है और पवित्र रहना है। And the another church we see, fourth church. और एक देखते हैं हम कलीसिया जो चौथी You कलीसिया know, है। in Revelation chapter 3 verse 3, प्रकाशित वाक्य का तीसरा अध्याय 3ा it वचन, is the Sardis church. वो सार्डिस की कलीसिया, सर्डिस If की you कलीसिया। will not wake up, और यदि तू नहीं उठेगा, I will come like thief and you will not know what hour I come upon you, God says. यदि तू जागरूक न रहेगा हाँ। तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। In your backslidden stages, think about if Jesus Christ comes suddenly. सोचो तुम्हारे पीछे हटे हुए स्थिति के समय अचानक यदि यीशु आए, What happened to the Sardis church? क्या हुआ सार्डिस की कलीसिया? All of them will be sent to the lake of fire. सब आग की झील में डाल दी It's जाएंगे। okay.
आज प्रार्थना करेगा तो चले, प्रार्थना नहीं करेगा तो चलेगा, बाइबल पढ़ेगा नहीं तो चलेगा, that is all backsliding stages. अगर सोच रहे हो कि ठीक है आज एक दिन प्रार्थना नहीं किया तो चलेगा, आज एक दिन बाइबल नहीं पढ़ेगा तो चलेगा, ये सारे पीछे हटने की निशानी है। World is shut down, pastor is praying, it's okay. पूरा दुनिया शटडाउन है, केवल पासवान प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। I know everything. मैं सब जानता I हूँ, know the Bible. मैं बाइबल भी जानता I हूँ, believe in God. मैं प्रभु पे विश्वास है। Are you spotless? क्या तुम निष्कलंक हो? Are you blameless? तो क्या तुम पवित्र हो? When the bridegroom comes, जब दूल्हा आएगा, are you praying? क्या तुम प्रार्थना कर रहे Is हो? your oil burning in your lamps? क्या तुम्हारे दीवट के में तेल है जो जल रहा है? Are you prepared क्या तुम तैयार हो? to meet the Holy One of Israel? तो पवित्र इज़राइल का पवित्र परमेश्वर से भेंट करने के लिए। What is happening to you? तो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? Negligence will throw you to the lake of fire. तो लापरवाही तुम्हें आग के झील में डाल You know, सकता the है। corona came because of the people of negligency. तो जानते हो कोरोना क्यों आया? लोगों ने के अंदर लापरवाही की। Today everybody wants to know the word of God. सब लोग अभी प्रभु का वचन सीखना चाहते हैं, Everybody wants to pray. सब प्रार्थना करना चाहते When the हैं। opportunity was there, जब मौका दिया गया था, when the seminars were there, जब सेमिनार रखे गए थे, when preachers were telling there is a meeting in the church, जब प्रचारक बोल रहा था कि मीटिंग से कलीसिया में when आओ, the pastor said let's come and fast and जब pray, पासवान कह रहा था चलो आकर प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, oh little half an hour extra people will show the time to the priest and pastor. अगर पासवान ने आधा घंटा एक्स्ट्रा लिया, प्रचारक ने एक्स्ट्रा घंटा आधा घंटा लिया, तो लोग उसे घड़ियाल दिखाते हैं। Today what is happening? तो आज क्या हो रहा है? Everybody is locked down. सब लोग जो है बंद कमरे में हैं। And God has allowed this lockdown और प्रभु ने अनुमति दी इस बंद कमरे में so रहने that की, you should not be like Sardis church. ताकि तुम सार्डिस की कलीसिया के समान न If in बने। your backslidden stage अगर तुम्हारे पीछे हटे हुए स्थिति में God comes, सोचो प्रभु यदि आए, think about your condition. तो सोचो तुम्हारा हालत क्या God होगा। says be careful. प्रभु कहता है सावधान I रहो, will come any moment. मैं कभी भी आ सकता हूँ, किसी भी घड़ी आ So सकता हूँ। 4 churches to the Ephesus. तो ये चौथे कलीसिया एफिसियंस, Now all the 4 churches, तो ये सारी 4 कलीसिया, God was so angry. प्रभु बहुत नाराज थे In the उनसे। Ephesus church he says I will remove Jesus Christ, means I will remove the lampstand. और एफिसियों की कलीसिया से प्रभु कहता है कि मैं यीशु को ही हटा दूंगा वहां से, यानी मैं वो दिवट को ही निकाल To the दूंगा। Pergamum church he says I will make a war against you through my word. और पेरगमुन कलीसिया से कहता है कि मैं तेरे विरुद्ध युद्ध करूंगा मेरे वचनों के For द्वारा। Thyatira church he will says I will cost you on the sick bed. और तियतरा कलीसिया से कह रहा है कि मैं तुझे रोगशय पर डाल दूंगा। To the Sardis he's saying I will come like a thief in your backslidden stages. और जो है सर्दीस कलीसिया से वो कह रहा है कि मैं तुम्हें जो है एक When you're backslidden, तो तुम तुम्हारे anytime I can come. मैं कभी भी आ सकता हूँ तुम्हारे पीछे हटे हुए स्थिति Any में, moment Jesus किसी may भी come. घड़ी में आ सकता हूँ। Are you ready? क्या तुम तैयार This हो? means in your backslidden stage, उसका मतलब है कि तुम्हारे पीछे हटे हुए if स्थिति suddenly में Jesus comes, यदि अचानक यीशु आए what happens to the church? तो कलीसिया क्या होगा? Of all Sardis, all of them will be sent to the lake of fire. सार्डिस के सारे लोग आग की झील में डाल दिए Think जाएंगे। about, we are going to recognize which church you belong in the 7 churches. देखो हमारा जो पहचान होगा अंत समय में वो 7 कलीसियाओं में कौन सी एक कलीसिया के भागीदार Let me हैं। tell you what the Spirit of the Lord is saying. मैं अभी बताना चाहता हूँ जो पवित्र आत्मा कह रहा है। God says, प्रभु कहता है be careful, सावधान रहो, I will come any moment. मैं किसी भी वक्त आ सकता हूँ। Be ready, my friend. मेरे दोस्तों You तैयार know हो what is जाओ। the backsliding stages? जानते हो कि पीछे हटने का You're निशान still क्या है? downloading the movies and watching the movies. अभी भी तुम पिक्चरों को डाउनलोड कर रहे हो, पिक्चरों को ही देख रहे The हो। corona is not enough you to, सुधारने के लिए. कोरोना काफी नहीं है तुम्हें सुधारने के लिए। Come back to God. प्रभु के पास वापस आ Come जाए। back to the first love of God. प्रभु के पहले प्यार में वापस Turn लौट to आओ। God. प्रभु के पास वापस Turn to लौट His आओ। love. उसके प्रेम में वापस आ Repent जाओ। before God. प्रभु के सामने पश्चाताप करो, मन फिराओ। Let me tell you what is the introduction for all these churches. जानते हो ये सारे कलीसियाओं का परिचय कैसे किया गया है? These are all merciful warnings to the church of Jesus Christ. यानी यीशु मसीह
चेतावनी दे रहे इन सारी कलीसियाओं को अपने दयावन के दया If के God अनुसार। mercifully warning to those churches, that means those churches' character are still existing in the present day churches. यानी उन दिनों की कलीसिया को प्रभु जो है अपने दया के अनुसार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये है कि आज की भी कलीसिया जो है वो इसी रीति से है और प्रभु उन्हें भी चेतावनी दे As रहा a है। 21st century church, 21 शताब्दी की कलीसिया we होने are के रूप में modernized. हम तो मॉडर्न कलीसियाएं हैं, Oh, we are far आगे. हम बहुत ही आगे You हैं। know what we need to do? तो हमें क्या करना है? As a 21st century church, 21 शताब्दी की कलीसिया होने we के रूप need में to take the warnings, the merciful warnings seriously in our lives. तो हमें जो प्रभु दया से अपनी जो चेतावनियां दे रहे हैं उसे हमें गंभीर रूप से लेना Let me है। tell you the good news. खुशखबरी दूं, There is no perfect church in this world. ये पूरे विश्व में कोई भी सिद्ध कलीसिया नहीं We मिलेगी। all make mistakes. हम सब गलतियां करते हैं, But the beautiful thing is, लेकिन सबसे सुंदर बात ये है, God is willing to forgive and correct us, and He wants to rebuild us back. तो प्रभु हमें क्षमा करने के लिए तैयार है और वो चाहते हैं कि हमें फिर से वो पुनर्स्थापित करे, सुधार कर फिर से पुनर्स्थापित He करे। does not just cast us away. वो केवल हमें ऐसे ही जो है फेंक नहीं देता। God is saying, I'm giving you opportunity, man, come back to me. प्रभु कहता है कि मैं तुझे फिर से मौका दे रहा हूँ, मेरे पास वापस आ जाओ। This moment you may say, अभी तुम कह रहे होंगे, Pastor, पास्टर, I messed up my life. मेरे जीवन को मैंने खराब कर I दिया है। wanted to know today. तो फिर आज मैं जानना चाहता You हूँ, know, I'll tell you, my God is a merciful God. मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जाने कि मेरा जो परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर दयालु He प्रभु है। wants you with His mercy. वो तुम्हें वापस चाहता है अपने दया के अनुसार। And He wants you with His love and compassion. वो अपने प्रेम और तरस से तुम्हें चाहता He है। is willing to forgive you. वो तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार He है। wants to accept you back वो तुम्हें वापस लेना चाहता है, so that you can be built up again on the foundation of the rock of Jesus Christ. ताकि फिर से तुम यीशु मसीह के बुनियाद पर बांध दिए जा सकते हो। Very important, you need to understand this. ये बात तुम्हें समझना बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। Why it is referred as 7 churches, 6 or not 8 churches. तो यहाँ पे जो वर्णन किया हुआ है 7 कलीसियाएं क्यों कही गई है, या 6 या 8 ऐसे नहीं कहा Now गया। listen carefully. ध्यान से सुने अभी। In the Bible, बाइबल में 7, number 7 is such an important number 7 जो क्रमांक है वो बहुत महत्व रखता है in the whole Bible. पूरे बाइबल में। Like in the Bible, 7 days of creation, जैसे बाइबल में हम देखते हैं 7 दिनों में सृष्टि का निर्माण हुआ। and number 7 is seen 40 times in the book of Revelation. तो हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो 7 क्रमांक है वो 40 बार देखते हैं, लिखा हुआ And है। 7 times Israelites march around wall of Jericho. इजरायली लोगों ने जो यरीको के दीवार के इर्द गिर्द जब फेरा किया वो 7 बार किया। 7 times Naaman dipped himself in Jordan River. 7 बार नामान ने यरदन के नदी में डुबकी मारी। You know, 7 years of famine and 7 years of plenty in the times of Joseph. तो 7 साल अकाल के, 7 साल बहुतायत के यूसुफ के समय में। And the 7 years Nebuchadnezzar was insane. He was mad. 7 साल के नबूकदनेस्सर पागल हो गया You था। know, 7 petitions are there in the Lord's Prayer. प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाई, पिता की प्रार्थना, वो पिता की प्रार्थना में 7 निवेदन हैं। And 7 times Jesus spoke from the cross. तो यीशु ने क्रूस से जो शब्द कहे वो 7 बार। In Revelation 1:4, 7 spirits of God. तो 7 प्रभु की आत्माएं, वो प्रकाशित वाक्य 1 और ये पहला अध्याय 4 वचन में है। 7 stars, 7 तारे, 7 angels, 7 दूत, 7 lampstands. 7 दिवटे। All these 7 signifying ये सारे जो 7 है, when God does something, He does it completely in your life and my life. उसका मतलब है, 7 का मतलब है जब प्रभु जो कोई भी बात तुम्हारे जीवन में करता है, तुम्हारे मेरे जीवन में वो परिपूर्णता से पूरी करता है। Think about when there is so much of imperfection in our life. विचार करो, हमारे जीवन में
हम सिद्ध नहीं हैं, When Jesus comes, लेकिन जब यीशु He आते will हैं take away all our imperfections तो हमारे अंदर जितने भी कमियां हैं उसे वो निकालता and है, makes you and me perfect in Jesus Christ. तो यीशु में हम पूरे सिद्ध हो जाते हैं। It's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण That है। means number 7 in the Bible is very, very important. उसका मतलब है जो 7 क्रमांक है बाइबल में दिया गया वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। Meaning what God started, He will finish it perfectly. उसका मतलब है जो प्रभु ने शुरुआत किया है वो पूरी तरह से उसे पूरा You करेगा। know, when you read about the 7 churches, जानते हो जब तुम 7 कलीसियाओं के बारे में पढ़ते हो, there are 3 features of very unique. 3 बातों का वर्णन किया गया है बहुत ही अलौकिक है, अद्भुत Now है। listen, this is very, very interesting. ये बहुत ही अद्भुत है। This is only introduction of the 7 churches. अभी मैं केवल परिचय कर रहा हूँ ये 7 कलीसियाओं You know, के। I'm enjoying every day I'm studying the word. तो मैं इन वचनों को जो है स्टडी कर रहा हूँ तो मैं बहुत ही एंजॉय कर रहा When हूँ। you read, very unique things in these 7 churches. तो ये 7 जो कलीसिया है उनके बारे में जो है कुछ विशेषताएं हैं। There are very unique things in the 7 churches. ये 7 कलीसियाओं में कुछ अलग बातें हैं, विशेषताएं And हैं 3 things are very unique. और 3 बातें खास करके बहुत ही अद्भुत है। अद्भुत है. You know, number 1, each letter is addressed to the angel of the church, right? हर एक जो पत्री लिखी हुई है वो उस कलीसिया के दूत को लिखी गई That है। means in Greek, word angel means messenger. उसका मतलब है यूनानी में जो है वो एक संदेश देने वाले को कहते You हैं। know, it's a messenger. उसका मतलब है संदेश देने वाला। If you want to make it little clear, अगर और थोड़ा साफ रूप से बताऊं, it can be a pastor. वो पासवान हो It सकता है। shows the quality of a pastor will characterize the standard of the church. यानी वो पासवान जो कैसा है उसका जो स्वभाव वो तो कलीसिया को दर्शाता है। If the pastor himself doesn't have the character, how he will teach the church the character? अगर पासवान के अंदर ही चरित्र नहीं अच्छा तो कलीसिया को कैसे सिखा सकते हैं चरित्र के विषय The में? Bible says very clearly to the messengers, messenger of the Lord. बाइबल कहता है साफ रूप से वो दूत यानी वो संदेश देने वाला। You know, the Lord is speaking to all the 7 churches. तो प्रभु उन 7 कलीसियाओं से बोल रहा है। Jesus is saying, यीशु कहता है I am speaking to the angel, means messenger, means the pastor. यानी मैं जो है वो दूत के साथ बोल रहा हूँ, यानी वो दूत है जो संदेश लाता है। Amen. I am speaking to the angel of the church, तो मैं उस कलीसिया के दूत से बोल रहा हूँ, means messenger of the church. यानी कलीसिया का दूत जो संदेश लाने वाले से। Messenger means the pastor of the church. संदेश जो लेकर आता है उसका मतलब वो पासवान के The साथ होगा। pastor can be the foundation to build up the church in the right character. पासवान जो है कलीसिया के लिए नींव है जो कलीसिया को सही दिशा या चरित्र में चला सकता है। Even the leader of the church कलीसिया का अगुवा भी can build a right foundation for the church. कलीसिया के लिए एक सही बुनियाद बना सकता है। When you and I are in the leadership, जब तुम और मैं अगुवापन में है, we नेतृत्व में must है, be careful हमें सावधान बरसना जरूरी है for the work of the Lord. प्रभु के कार्य के लिए। You know, pastor or a leader is the foundation to build the church in a right character. तो पासवान और अगुवे जो है, नेतृत्व जो है, वो एक कलीसिया को बुनियाद बनाने के लिए वो एक नींव है। Years back, somebody asked me, Pastor, do you drink? बहुत साल पहले किसी ने मुझे एक सवाल पूछा, पासवान क्या आप शराब पीते हो? I asked him, what is the drink? मैंने उससे पूछा उसका मतलब क्या No, है? you take wine, no? क्या आप वाइन लेते हो? I said, no. मैंने कहा नहीं। What are you saying? कहने लगा क्या I've कहते seen हो? many pastors. मैंने बहुत सारे I've पासवान seen many people, men of God. मैंने बहुत सारे प्रभु के दासों को They देखा है। bindas, they take wine. बिंदास वो लोग वाइन पीते हैं। Oh, I was shocked. मैं तो अचंभित हो गया Because when कैसे? I came to the Lord, क्योंकि जब मैं प्रभु में आया you know, I was 180 degree, I turned to the Lord. तो मैं तो 180 डिग्री जो है पूरी तरह से प्रभु की ओर I मुड़ told गया। that man, मैंने वो आदमी से if कहा I don't have the character, I have no right to speak on the character. अगर मेरे अंदर ही अच्छा चरित्र नहीं है तो वो चरित्र के बारे में दूसरों को मैं सिखा भी नहीं सकता। Character matters for every messenger of God.
प्रभु के हर एक संदेश लाने वाले व्यक्ति के अंदर चरित्र होना बहुत Hope you're getting what I'm saying. आशा रखता Now हूँ I कि समझ know, रहे हैं कि I know the mind is open to see who is doing what. Please close this door and say, Lord, keep me in character. और मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हारा दिमाग खुल गया है देखने के लिए कौन क्या कर रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु से कहो कि वो दरवाजा बंद करो, मुझे अपना चरित्र देखने दो। Amen. Number 2, unique feature in the church, in these 7 churches. तो और एक जो है इस कलीसिया का जो है खास बात हम देखेंगे। Jesus introduced himself to the churches. तो यीशु ने अपना परिचय कराया इस कलीसिया के साथ। When you read the book of Revelation, जब तुम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हो, Jesus himself addressing to the 7 churches. तो यीशु स्वयं ये पत्रियां लिख रहे सातों कलीसिया को। You know, this is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Jesus himself talking to the church. यीशु स्वयं जो है इस कलीसिया से बातें कर रहा है। Feature number 3. तीसरी सुविधा, All these letters end with the same evaluation. तो ये सारे जो कलीसिया की जो पत्रियां हैं उनका जो अंत में जो अनुवाद किया गया है वो सबका एक ही है। What it says? तो ये क्या कहता है? He who has ear, let him hear what the Spirit says to the churches. तो वो कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। Now I want to tell you before we get into the number 1 church tomorrow. कल जब हम पहली कलीसिया के बारे में सीखने से पहले, He who has ear, let him hear what the Spirit of the Lord says. जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। You know, I have laid the foundation देखो मैंने तो बुनियाद डाली है to venture the 7 churches. ताकि हम सातों कलीसियाओं में आगे बढ़े। Amen. Amen. If you don't know the foundation, अगर तुम इस बुनियाद को नहीं जानोगे, you know, you will never understand what is the 7 churches. तो तुम बिल्कुल नहीं समझोगे इन 7 कलीसिया। These are the studies you need to read again and again, listen to again and again. तो ये सारे शिक्षण को जो है बार-बार तुम्हें पढ़ना है, उसे समझना है। And again I want to tell you, अभी फिर से बताना चाहता हूँ, anything if you don't understand in this study, और इस शिक्षण में जो भी अगर कुछ समझ में नहीं आया, please WhatsApp or email to us. तो कृपया करके व्हाट्सएप करें और हमें ईमेल आप भेज सकते And हैं। I believe that God is speaking to us. और मैं आशा रखता हूँ कि परमेश्वर हम सबसे बातें कर Today रहे we हैं। learned the introduction to the 7 churches. आज हमने परिचय को 7 कलीसियाओं के परिचय सीखा। And you know what John has already seen यूहन्ना ने पहले से क्या देखा है, and what was the situation of the churches कलीसियाओं की हालातें कैसी थी, and the things that foretold by John that is going to happen. और वो बातें जो यूहन्ना ने पहले से ही बताई थी, जो आने वाली बातें हैं। Then we learned today और Jesus is the faithful witness. और हमने एक और बात सीखा कि यीशु मसीह वो विश्वास योग्य गवाही He is है the firstborn from the dead. और मरे हुए में से वो पहलौठा है He is the ruler over the kings of the earth. और पूरे राज्य का वो जो है हाकिम है। Then we learned 3 titles for Jesus. फिर हमने यीशु के 3 शीर्षक That's why he सीखे। is a faithful witness. वो विश्वास योग्य साक्षी, He is the first from the begotten. मरे हुए में से पहलौठा, And he is the ruler over the kings of the earth. और पूरे राजाओं का जो है वो प्रभुता है। You know, then we read these 7 churches, revelation to the 7 churches only. और हमने ये भी देखा कि ये जो 7 कलीसियाओं को केवल प्रकटीकरण, You know, why not 8 or 9? तो क्यों 8 या 9 नहीं? Then we learned this one. तो हमने ये सीखा, Each church was comprised of various congregations. तो हमने ये भी सीखा कि हर एक कलीसिया में अलग अलग तरीके के मंडली थे। This church represents the totality of the church of that day. तो ये जो 7 कलीसिया है उन दिनों की जो बहुत कलीसियाएं थी, उन कलीसियाओं का जो है वो रिप्रेजेंटेटिव These था। churches represent all the churches of this present age. तो आज के दिनों की जो जितनी भी कलीसिया हैं, वो जो 7 कलीसिया थी वो उनकी Then we रिप्रेजेंटेटिव see थी। the 7th spirit represents the perfection of the and ministry of the Holy Spirit. तो हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता, ये जो आत्मा है वो परिपूर्णता को भी दर्शाती Then थी। very important thing we learned today. और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमने When the सीखी, church go through crisis situation, जब कलीसिया में कोई भी
when the समस्या church होती is है, shut down, जब कलीसिया बंद हो when जाती the है, church goes through persecution, जब कलीसिया को क्लेश से गुजरना पड़ता है, only one way is there. एक ही बार Church has to go back to the word of God कलीसिया को प्रभु के वचन के पास and जाना see है, what has happened in the 7 churches. तो उन्हें देखना है कि 7 कलीसिया में क्या हुआ। Then we learned about the hope, फिर हमने आशा के बारे में सीखा, and I want to tell you, तो मैं तुम्हें बताना चाहता and we हूँ, learned about the Smyrna and Philadelphia church, no criticism. तो हमने देखा कि स्मरणा फिलाडेल्फिया की कलीसिया को प्रभु ने निंदा नहीं की, Laodicea was full of criticism church. और ये लउदीसिया की कलीसिया में पूरी निंदा की गई Then थी। we see the Ephesus church. फिर हम एफिसियों की कलीसिया को देखते हैं, God will remove the lampstand. प्रभु उसका दिवट हटाएंगे। You know, it's very, very dangerous when Jesus goes out of the church. बहुत बहुत खतरनाक बात है जब यीशु ही कलीसिया से बाहर निकल जाते हैं। And then we see Pergamum church. फिर हम परगमम की कलीसिया देखते हैं। Jesus said, I will wage the war with my words. यीशु कहते हैं कि मेरे शब्दों के द्वारा जो है मैं युद्ध लड़ूंगा। And we learned about Thyatira introduction. फिर हमने थियोतरा के बारे में सीखा जो परिचय में, I will make war against you. मैं तेरे Sorry, I will put you on the sick bed. मैं तुझे रोग शय पे खाट पे The डालूंगा। dangerous thing of the Sardis church. तो और सबसे खतरनाक चीज सार्डिस कलीसिया के विषय में, Keep it in your mind before I close. अंत करने से पहले इसको ध्यान में If रखें। you don't read the Bible, अगर तुम बाइबल नहीं if you पढ़ोगे, don't pray, अगर तुम प्रार्थना if नहीं you're not going to fear the Lord in this time, अगर इस समय में तुम प्रभु का भय नहीं think मानोगे, about any moment Christ may come. सोचो यीशु मसीह किसी भी समय आ सकते And हैं। it is, if you're left out, अगर तुम पीछे ही रह गए, only Corona is putting us mess. कोरोना में ही तो हम इतने बेहाल हो In गए। the Corona, we are becoming sick, even though we are not going out. कोरोना में जो है घर में बैठकर ही हम बीमार हैं। Many people they are telling me we are sick in the house. बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि घर में बैठ बैठ के बीमार लग रहे Why? They are addicted to the things of the world, हैं, क्योंकि वो संसार की चीजों से आकर्षित हैं carousing, drunkenness, और वो पीना, शराब पीना, partying, पार्टी mingling करना, with people. लोगों के साथ घूमना No फिरना, time for the church. कलीसिया के लिए समय No नहीं, time for Bible study. बाइबल स्टडी के लिए कुछ समय No नहीं time देते, for worship. आराधना में आने को समय No नहीं, personal time with God. प्रभु के साथ में जरा भी निजीवत So समय if नहीं। Christ comes now, अगर यीशु मसीह अभी आए they will be thrown into the lake of fire. तो आग के झील में वो फेंके जाएंगे। So then we learned about 7 is very important in the Bible. तो हमने सीखा कि 7 जो क्रमांक है वो बाइबल में बहुत महत्व रखता है। Meaning whatever God does, उसका मतलब है कि प्रभु जो भी करता है it completely completes everything in your life and my life. यानी वो पूरा करता है, तुम्हारे और मेरे जीवन में उसे संपूर्ण रीति से पूरा करता है। And 3 unique features in the 7 churches. और वो 7 कलीसियाओं की कुछ अद्भुत बातें थी। Each letter is addresses to the angel of the church. हर एक जो पत्री है वो एक उसके उस कलीसिया के दूत को जो है That लिखी means गई है, that the angel of the church should have a character. यानी उस दूत का, उस कलीसिया का जो दूत है उसका अंदर एक चरित्र होना, And that the angel of the church उस कलीसिया का दूत should lead in the fear of God. वो प्रभु के भय में रहना है। The angel of the church, you call उस him कलीसिया, messenger, pastor, brother, leader, whoever it is. वो कलीसिया का जो दूत है, वो जो संदेश लाने वाला व्यक्ति, तुम कह सकते हो पासवान, कोई भी जो संदेश देता है, You need to have a character. तुम्हारे अंदर वो चरित्र होना है। Only the person who have a character, केवल वो व्यक्ति जिसके अंदर वो चरित्र है, he preached the character of Jesus वो Christ. यीशु का चरित्र के बारे में सिखाएगा। And then we learned Jesus introduced himself to the church. फिर हमने सीखा कि यीशु अपनी परिचय करा रहा है कलीसिया से, And in the introduction, और परिचय में you know, all these letters end with the same evaluation. यानी ये सारे जो पत्रियां हैं उनका एक ही अनुमान किया गया है। He who has ear, let him hear what the Spirit says to the church. जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा Now है। this is the foundation I laid to venture into the 7 churches. अभी मैंने तुम्हें ये बुनियाद डाली है ताकि हम आगे जाकर वो 7 कलीसियाओं के विषय सीख सके। Amen. If you have not subscribed the channel, अगर आपने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है subscribe the channel तो सब्सक्राइब करें चैनल को। and click on the bell, वहाँ पे एक घंटी है, उस घंटी को आपको दबाना है, and प्रेस you करना will है। get our notification तो फिर उसके बाद जब भी हम लाइव आते हैं तो आपको so नोटिफिकेशन that you मिलेगा, can be a part of this Bible study. ताकि इस बाइबल स्टडी के आप भागी हो May सकते God हैं। bless you. प्रभु आप सबको आशीष दे। We love you. हम आपसे प्रेम करते हैं, Pray for us. हमारे लिए भी प्रार्थना We करें। are praying for each one of you. आप सबके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। God be with you. प्रभु आपके साथ हो।